नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपकी जो भी परेशानी कोरोना से संबंधित है, आप उस परेशानी को हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद रहेंगे, उनसे पूछ सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे, यानी कि जो कोरोना के मरीज हैं वो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, साथ ही साथ जो घर पे रहते हैं किस तरह का ट्रीटमेंट उनको लेना है, और जो अस्पताल चले जाते हैं वहाँ किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, और समय के साथ साथ जो ट्रीटमेंट है उसमें कितना बदलाव आया है। इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे फेसबुक पेज पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ लगातार हम अपने फ़ोन नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन फ़ोन नंबर्स पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और इस पूरे 1 घंटे के दौरान मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी गौतम। Shukriya. Well, as far as Dr. Speak is concerned, like my colleague said, the subject for today is treatment protocols, because that is something that has been of prime concern among all sorts of patients, whether they're in home isolation, treating their COVID at home, or they've come to a situation where they have to be in a hospital on oxygen support or otherwise, or any other kind of support as well. There are different kind of treatment protocols in place, and they have evolved as well with time, considering the challenges that have popped up, and the latest one of course being black fungus as well. So take us through what is the latest in as far as this front is concerned of the battle against COVID-19. We have the following experts with us today. We have Dr. Sanjeev Sinha, he's Professor, Department of Medicine, All India Institute of Medical Sciences in Delhi. Dr. Ravi Kirti is also with us, Additional Professor, General Medicine at AIIMS in Patna, and Dr. Ved Prakash, HOD Pulmonary and Critical Care Medicine, KGMU, is also with us. Good afternoon to you, doctors. First to you, Dr. Sinha, in terms of the kind of treatment protocol that was prescribed earlier and the fresh challenges that have cropped up, particularly keeping in mind black fungus, have there been major changes? If you could tell us about that first. Your audience. So I would like to tell treatment protocol based on the ICMR and AIIMS guideline, and this is including Ministry of Health, Government of India guideline also. And I would like to tell briefly that we have three kind of patient, like 80 to 85 patient either asymptomatic or they have mild disease, and rest number of patient are either having moderate or severe disease. And so we divide this in asymptomatic, mild, moderate, and severe disease. And as per ICMR guideline, the mild patient are having generally less symptoms. They are having kind of URTI, upper respiratory tract infection, mild cough, and they can have fever, high-grade fever, and they can have body ache, and then they can have loose motion sometime, and some patient also complained about loss of smell and loss of taste. So these are some common symptoms which a patient present, and then they have to meet to the doctor, and as per doctor advice, they have to do RT-PCR test for COVID, and if it is positive, then we have to treat them as per ICMR guidelines. Generally, we ask them to do home quarantine, and very important thing, we have to tell them that they have to be measure their oxygen saturation regularly. They have to arrange oxygen probe, and they have to measure the oxygen saturation and pulse rate, body temperature, and if possible, then blood pressure also. So these are things in the mild patient. And if saturation is coming down less than 93% or 92%, then they have to inform to the doctor, and immediately we have to refer to the hospital for the oxygen delivery, because they need oxygen if there is a saturation less than 93% or 92%, and patient is having symptoms like shortness of breath and chest pain, severe cough, and if they are delirious, if they are having cyanosis, and if they are having hypotension, they are confused. So these are the very important signs and symptoms when patient have to be discussed with the doctor, and as per doctor decision, they have to be given home oxygen, or they have to be shifted to the hospital for oxygen and measurement of their vitals. And they, at home, they have to take the crocin for fever, and they can take ivermectin for
This is in the protocol 12 milligram OD for 5 days, and then multivitamins and high protein diet, and high. They have to keep themselves hydrate and take plenty of fluids also. So these are some things we have to understand. Then once they are having desaturation, they have to be referred to the hospital, and they have to admit in the hospital for the moderate to severe disease. And as a protocol, we have to start injection methylprednisolone if required. We have to assess them in detail, and as per requirement, we have to start the oxygen, and then we give steroid and low molecular weight heparin, and we give antibiotic as per local antibiogram, and if required, then we give. Okay. And patient is not responding with the oxygen, then we have to be like we have to initially use the oxygen by face mask or nasal cannula, and then if they are not responding, then we have to give high flow nasal cannula, oxygen through high flow nasal cannula, and other devices, and they are not responding, and saturation is coming less than 80, then we have to try the non-invasive ventilation, and patient have to be shifted to the ICU, and then we have to start the treatment like including tocilizumab if required, if there is a cytokine storm. So that is in the protocol, and if required, then we have to intubate the patient on mechanical ventilation and put on mechanical. ठीक है सर. So this in the brief I would like to tell, and very important thing, I will just take 1 more minute. Very important thing, we have to understand that there should not be irrational use of steroid, and because of irrational use of steroid, there is an increased blood sugar, and many doctors are unable to convey the proper message to the patient that they have to be measure the blood sugar level if they are on steroid. Many persons started steroid themselves in the home. Though in a mild cases, there is no need for steroid until 7 days are over and patient is sick, and if they are having high-grade fever and hypoxia, then they might require steroid at home. Otherwise, there is no use of steroid in early stage of the disease. Even it can harm later on because it can increase the replication of the virus. So this is in brief, and if other things, then I'll come back. Thank you. ठीक है सर. डॉक्टर रवि कीर्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना से. सर, जिस तरह से अभी डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि पूरा का पूरा क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, समय के साथ साथ करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और कोरोना वायरस को अब जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो अच्छी तरह समझने भी लगी है. काफ़ी कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बदले भी हैं. अभी जब कोई शख्स है, उसको किसी तरह के सिम्टम आते हैं, उसके बाद वो टेस्टिंग कराता है और उसको कोविड की पुष्टि होती है, तो उसके बाद क्या कुछ प्रोटोकॉल अभी आप लोग उपयोग कर रहे हैं? डॉक्टर रवि कीर्ति जी नमस्कार. देखिए, अगर किसी को लक्षण हैं और वो जांच करवाता है और उसमें कोविड पॉजिटिव अगर आता है, तो जाहिर है कि उसको किसी तरीके से चिकित्सा सेवाओं से जुड़ना चाहिए, चाहे वह फोन के माध्यम से हो या किसी निकटवर्ती अस्पताल जहां कोविड की चिकित्सा हो रही हो वहां जाकर हो. क्योंकि जैसा कि अभी प्रोफेसर सिन्हा ने बहुत अच्छी तरह बताया, इस बीमारी के कई चरण होते हैं, और जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो जो माइल्ड केसेस हैं उनकी तो चिकित्सा घर में आसानी से संभव है, और उसके लिए 2-3 चीजें देखनी होती हैं. पहला तो कि जो मरीज है उसको सांस में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की जो संतृप्तता है, मात्रा है, उसको आजकल हम आसानी से माप सकते हैं. पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा उपकरण है जो कि अब सर्वसुलभ है, आसानी से मिल जाता है. तो उससे हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं, और अगर वह 94 के ऊपर है, यानी कि 95 से 100 के बीच है, और मरीज को सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि यह माइल्ड डिजीज है. एक और चीज हम लोग देखते हैं वह है कि
एक रेस्टिंग स्टेट में, जब मरीज आराम से बैठा हुआ हो, उस समय उसकी सांस लेने की गति कितनी है। तो सामान्यतया माइल्ड केसेस में हम मानते हैं कि वो 24 के नीचे होना चाहिए। तो अगर ये चीजें हैं, यानी कि वह माइल्ड कैटेगरी में आता है, तो घर पर उसकी चिकित्सा संभव है। इसमें जैसा कि सर ने बताया कि इसमें बहुत कम दवाइयों की ही आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से हम बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं। इसके अलावे विटामिन्स आदि दिए जा रहे हैं। इसका कोई बहुत प्रमाण नहीं है कि इससे मरीज को ठीक होने में आसानी होती है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि हम चाहते हैं कि लोगों का पोषण बना रहे, इसलिए विटामिन सी, मल्टीविटामिन आदि लेने में कोई नुकसान तो नहीं है, इतना हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं। और एक आध और दवाइयां हैं, जैसा सर ने बताया, आइवरमेक्टिन आदि, जिनके बारे में साक्ष्य अभी बहुत कम है लेकिन उपयोग में है। इसी प्रकार स्टेरॉयड इनहेलर कई बार हम ऐसे केसेस में पहले 5 दिन के बाद खासकर अगर लक्षण मौजूद हो तो बताते हैं। लेकिन इन दवाइयों का प्रयोग निश्चित रूप से किसी चिकित्सक के परामर्श से ही लिया जा सकता है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना और घर में भी अपने ऑक्सीजन संतृप्तता को बार बार मापना, दिन में 2-3 बार मापना, और अगर वह 95 के नीचे जाने लगता है या 94 के नीचे जाने लगता है, ऐसी परिस्थिति में अवश्य ही उनको अस्पताल का रुख करना चाहिए। Okay, we've seen the change coming in treatment protocols also related to convalescent plasma. Although India's own studies showed, we saw studies at ICMR and AIIMS level showing that convalescent plasma did not have much of an impact on the disease itself, in terms of hospital stay or the severity. Only now it's been dropped completely from the treatment protocol. So Dr. Ved Prakash, can we now really ensure that no convalescent plasma therapy will be used anywhere? Is that something that is a given now, or is it still up to doctors to prescribe it, although it has been found to be completely ineffective in any sort of a situation? Yeah, Gautam, for last week, the ICMR has reviewed the recommendations, and the recommendations for plasma therapy has been withdrawn. But as you know, the recommendations were initial recommendations were for these patients in the first week of the symptoms. The plasma therapy and other antiviral therapies are applicable. So we really not getting the patients in first week, and we are getting the most of the patient in second week. So at that time, I think the role is very limited for convalescent plasma therapy. So and we are getting more and more serious patients when the disease has progressed to severe COVID pneumonia. Then the role of these therapies like convalescent plasma therapy is limited. So they have abolished it from the guidelines, and some centers are still using it as if they get the patient in first week and they are willing, then they can use this. But as the recommendations were from initially, so now they have taken back. Okay. ठीक है। डॉक्टर सिन्हा, सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल आने शुरू हो गए हैं। सरोज कांता नायक हैं, ये पूछते हैं कि इनको थोड़ा सा कफ है और कोई इनको सिम्टम इसके अलावा है नहीं, क्या इनको टेस्ट करवाना चाहिए? कितने दिनों से कफ है इनको? कुछ और इन्होंने सिम्टम्स बताए, फीवर है या कुछ? नहीं, ये बोल रहे कफ के अलावा कोई सिम्टम नहीं है। 1 हफ्ते से है लगभग। 1 हफ्ते से लगभग है कफ। जी। तो ये देखना पड़ेगा, कफ में अगर बलगम आ रहा है या सूखा कफ है और थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट है या फीवर हो रहा है, तब तो इनको नियर बाय डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो
उनको कोविड टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 7 days की हिस्ट्री है, तो इस समय वो कोविड टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक इज गोइंग ऑन एंड एट दिस स्टेज। एंड सेकंड थिंग, अगर उनको कोई मॉर्बिडिटीज है अंडरलाइंग, जैसे डायबिटीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, किडनी या लिवर प्रॉब्लम है, या अंडरलाइंग ब्रोंकल एस्मा सीओपीडी है, देन ही कैन डू आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर कोविड। ठीक है। Right. We have Otherwise, some. he can take the stimulation, he can take the cough syrup and discuss his problem on phone to nearby doctor. Okay. We have some more questions coming in. Chandni Jain wants to know, multivitamin tablets, zinc tablets and vitamin C tablets, do they help in protecting from COVID? Can any non-COVID person take these tablets regularly till the pandemic is on? And what is the role of ivermectin in protecting from COVID? Dr. Ravi Kirti, if you would like to explain to Chandni what all can she do really to avoid getting infected? Sure. So, as I said previously, vitamin C, multivitamins, zinc, there is no evidence as such that they help to recover from the disease or they protect from the disease. Having said that, this is common wisdom that a good nutrition would be helpful and would help us fight any disease. So, going by that logic, there is no harm in taking vitamin C and multivitamins, especially because they are water soluble vitamins. So, even if we take them in excess, they're not going to be deposited in our body and they're not going to do any harm. But as such, do they actually benefit in COVID-19? Well, I have to say there's no convincing evidence in that regard. Similarly, is it okay for somebody who doesn't have the disease to take multivitamins or vitamin C? Yes, by all means, it's not going to harm because, as I said, these are water-soluble vitamins and it's unlikely that an excess would be harmful. So there's no harm. Whether it will actually protect her, we have to say we don't know. And what about ivermectin? Ivermectin. So again, there have been certain studies and there is some evidence that it might be helpful but not very convincing. In fact, the WHO has reviewed all the available evidence and they said that the evidence is very weak and they're not in a position to recommend this drug at this point of time. But since we have very limited options in India, we have retained it as an option to treat mild cases of COVID-19 in early stages. As far as using it for protection, for prevention is concerned in a young and fit individual, it's not something that we can recommend on a mass level. Of course, in certain high-risk individuals like healthcare professionals, etc., the local hospitals might have, the hospitals might have their own local protocols. Like earlier on, many hospitals were using hydroxychloroquine. Then we found out that they're not helpful. Now, many places are using ivermectin for protection. But that is only, even if that's practiced, that's only for high-risk individuals. And on a mass level, we would not encourage that. ठीक है। डॉक्टर वेद, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हिमाचल प्रदेश पालमपुर से। करण हमारे साथ हैं। करण, सवाल पूछिए अपना। ये जानना चाहता हूँ कि जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन होगा, अगर उसने कोविड टेस्ट नहीं करवाया है और वो वैक्सीन लगा लेता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? डॉक्टर वेद। हाँ करण, देखिए जब सिम्टम्स होते हैं और उसमें वैक्सीन के लिए मना किया गया है, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं उनमें वैक्सीन से कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं आ रहे हैं। लेकिन यदि आप कांटेक्ट में, एक बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि घर में जब ये बीमारी आ रही है इस समय, जो पर्टिकुलरली जो सेकंड वेव है, तो उसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऐसे में वो घर में सभी को इन्फेक्ट कर रही है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब तक ये आप कांटेक्ट में हैं घर में और किसी को सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप रुक जाएंगे, लगभग 4 से 8 हफ्ते बाद अगर वैक्सीनेट कराएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा।
ठीक है। ओके। डॉक्टर संजीव सिन्हा, एक सवाल है। दरअसल अगर देखा जाए तो अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लोग अपने घरों में भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो उपयोग हो रहा है वो सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग हो रहा है, क्रोसिन का उपयोग हो रहा है, आइवरमेक्टिन का उपयोग हो रहा है, डॉक्सी का उपयोग हो रहा है, उसके अलावा जिंक और विटामिन सी का उपयोग हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली अभी यूज़ किया जा रहा है देश के अंदर, जो लोग खुद से कर रहे हैं या डॉक्टर की सलाह से कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि आईसीएमआर की गाइडलाइन जो रिसेंट आई हैं उसमें उन्होंने आइवरमेक्टिन को यूज करने के लिए कहा है, माइल्ड केसेस में यूज कर सकते हैं। और साथ में आपने पूछा, और उसकी एक डोज होती है 12 मिलीग्राम ओडी, या फिर अगर वेट के हिसाब से देते हैं उसको 12 मिलीग्राम ओडी एडल्ट पर्सन के लिए फॉर 3 to 5 डेज देते हैं हम लोग। तो इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। एक्चुअली इसे एंटी जो है ना, एंटी वर्म ड्रग है। हम लोग इसमें देखा गया कि एंटीवायरल एक्टिविटी भी होती है, लिमिटेड डेटा इस पर। सेकेंड थिंग, मल्टीविटामिन्स जो लेते हैं वो तो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। वो इसलिए देते हैं कि थोड़ा सा इम्यूनिटी बेटर हो जाती है डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वी आल्सो एडवाइज टू टेक हाई प्रोटीन डाइट, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और साथ में पैरासिटामोल देते हैं, और एक अगर आपको फीवर के साथ सोर थ्रोट है और सोर थ्रोट काफी सीवियर है तो आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। उनमें से 2 तरह के एंटीबायोटिक इसमें बताई गई हैं। एक तो एजिथ्रोमाइसिन 500 OD फॉर 5 डेज, और दूसरा एक है डॉक्सीसाइक्लिन, हम लोग 100 मिलीग्राम PD फॉर 5 डेज देते हैं। तो इनमें से एक कोई एंटीबायोटिक डॉक्टर की एडवाइस से लें, आप अपने आप ना। कोई भी दवा अगर लेनी है आप डॉक्टर की सलाह से लें, और वो जो भी एडवाइस करते हैं एज पर गाइडलाइन, उसको आप प्लीज। ठीक है। नोएडा से हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं। रवि, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना, अपनी वाइफ के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। बेसिकली सर, 1 महीने पहले ना अप्रैल में मेरी वाइफ को फीवर आया था, बट RT-PCR नेगेटिव आया था। लेकिन हमने 1 महीने बाद मुझे भी फीवर आया था पिछले महीने, और मैंने अभी जाकर के अपना एंटीबॉडीज टेस्ट कराया जिसमें 93% एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ऐसे में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ को भी कोविड हुआ होगा। अब से प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेरी वाइफ को पिछले 1 महीने पहले बहुत ही वीक फील हो रहा था, गिरा गिरा फील हो रहा था, मलेज जैसी फीलिंग आ रही थी, और खाने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब ग्रेजुअली ठीक है। लेकिन अब वो एक प्रॉब्लम कह रही है कि उनको हल्का हल्का चेस्ट में भारीपन लग रहा है, और ये पेन उनको हल्का सा पेट और ब्रेस्ट से हल्का सा नीचे और पेट तक ये पेन हो रहा है, और हल्का चेस्ट में भारीपन लग रहा है। और जब वो जैसे वॉकिंग वगैरह भी कर रही है, तो अगर 1-1.5 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं तो उनको हल्का सा 2 मास्क क्योंकि लगाते हैं तो ब्रेथलेसनेस फील होती है और थोड़ा चेस्ट में भारीपन लगता है। तो सर, क्या ये गैस है या हार्ट से रिलेटेड कुछ है? इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जैसा कुछ लग रहा है सर। डॉक्टर रवि कीर्ति, आप जवाब देना चाहेंगे इनका? जी, जैसा कि इनका शक है कि संभवतः इनकी पत्नी को उस समय कोविड ही हुआ था, क्योंकि RT-PCR जांच की भी सेंसिटिविटी लगभग 70% है, अर्थात 10 में से 3 मामले मिस कर सकता है यह टेस्ट। तो इनका शक शायद सही है। अभी जो लक्षण ये बता रही हैं, कहना कठिन है, हो सकता है कोई बहुत ही मामूली बात ही हो, लेकिन इसकी जांच करवा लेना उचित है। तो चूंकि अब 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो किसी आसपास के किसी डॉक्टर से एक बार मिल लें, ताकि एक बार सीधा इनकी पत्नी से हिस्ट्री ली जा सके, कुछ जांच की जा सके। हो सकता है कुछ थोड़ी देर इनको चलने के बाद उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जा सके, ज़रूरत हो तो एक ECG की जा सके, कुछ टेस्ट किए जा सके, क्योंकि सुनने में ये लक्षण बहुत मामूली लगता है और शायद है भी, लेकिन कभी कभी कुछ गंभीर चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे फेफड़े की नस में खून का थक्का बनना आदि। इसलिए एक बार इनको सीधे तौर पर किसी डॉक्टर से मिल लेना मेरे ख्याल से उचित होगा। ओके, उम्मीद करते हैं रवि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। वी हैव अनदर कॉलर जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली नाउ। राहुल, गो अहेड राहुल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। हाँ राजकुमार, बोलिए। राहुल कुमार सर। राहुल बोलिए। सर, मेरा भाई पोस्ट कोविड था, उसको अप्रैल से फिर से खांसी और बुखार स्टार्ट हो गया है, और RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद भी उनका नेगेटिव आया है।
तो कोई सी भी दवाई का उस पर असर नहीं हो रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूं सर? किसको किसको है? सर मेरा भाई है कितनी उम्र है? सर, 18 वर्ष है। ठीक है, डॉक्टर सिन्हा। हाँ, तो इन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड कि इनको फीवर हुआ है और खांसी बलगम आ रहा है, और आई थिंक 18 इयर्स एज है इनके भाई की, जी। और ये अप्रैल में हुआ था। अप्रैल में किस डेट में हुआ था? राहुल, आप लाइन पर हैं? अच्छा, The कोई call has कोई got बात नहीं। अगर disconnected. हाँ, कोई बात नहीं, अगर लास्ट मंथ हुआ है तो इस महीने के तो 15 अराउंड, टुडे इज 21, तो 3 हफ्ते तो इस महीने ही हो गए हैं। तो अगर एंड में भी हुआ है तो उनकी कंडीशन तो अब ठीक होगी। वो तो कोविड के चांसेस लगते हैं, अगर उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है तो उसमें कराना चाहिए था। और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लें। अगर कोई प्रॉब्लम है, खांसी हो रहा है तो स्टिमुलेशन कर लें, कफ सिरप ले लें, वीकनेस लग रही है तो मल्टीविटामिन्स लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और अगर फीवर लो ग्रेड आ रहा है तो उसके लिए पैरास्टामोल ले सकते हैं, और अपने नियर बाय हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखा भी लें। लेकिन 3 हफ्ते हो गए हैं तो कोविड के इन्फेक्शन तो उनका सेटल हो गया होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा राहुल। वी हैव अदर पीपल सेंडिंग अस क्वेरीज ऑन फेसबुक एज वेल। एक सवाल सुब्रतो चौधरी इज आस्किंग कि हाउ कैन आई गेट कोवी सेल्फ फॉर रैपिड एंटीजन टेस्ट? ये कोवी सेल्फ, द rat test kit has been approved by ICMR, Dr. Ved Prakash, very recently, and people have questions about its availability. But perhaps we need to understand better, you know, what kind of a situation do you really require the COVID self-testing kit? Could you explain to our viewers? सुब्रतो, देखिए अभी जो हमारे पास जो टेस्टिंग मॉडलिटीज हैं, जिनमें एंटीजन टेस्टिंग है और जिनमें RT-PCR की टेस्टिंग हो रही है, तो नज़दीकी केंद्र पर आप जाके करा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अभी कोविड सेल्फ की आप बात कर रहे हैं, तो जो अवेलेबिलिटी है वो इसको गवर्नमेंट लेवल पे बताया जा सकता है कि कब तक वो अवेलेबल हो जाएंगी फ्रीली, जिससे कि आप सेल्फ उसके टेस्ट कर सकें। तो अवेलेबिलिटी को गवर्नमेंट ही एड्रेस कर रही है और जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने का प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। But even in this, there are certain conditionalities as to when one should self-test. Could you explain to our viewers that as well? Yeah, Gautam, definitely the test when we don't have the facilities around, and we have the suspicion. As you know, the people are getting aware of about the disease, and home test kits are now gets approval for the use. And when you are having the strong suspicion and or you have some contact with positive COVID patient, then they can do the test at their home. So this is the within 2 minutes they can find the test, and it may take very few time to take the test, and self-test can be obtained. And many countries it is available, and India it has been approved recently, but the issue of availability is with the government, and the government is trying to make it available at the earliest. And earlier, Dr. Ved Prakash, it was said that in the case of rapid antigen test, that is RAT, if it's positive, then of course the patient can be considered to be COVID positive. But if it's negative, that since RAT is not the gold standard and RT-PCR needs to be done, has that also undergone a change now? Yeah, Gautam, definitely the same thing is here also, and the false negative results we were getting and the RAT. So rapid antigen testing was for screening purpose. If we are screening at community level, then we can import the test, and if we are getting a positive test, that will be treated as positive. But if we are getting a negative test, the person can be resampled and retested with RT-PCR. So the false negativity is high
in the rat. So that's there. Yes. ठीक है। बिरजू मेहता कॉल कर रहे हैं मुंबई से। बिरजू अपना सवाल पूछिए आप। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना है कि हमने 5 वीक्स के गैप में हमने 2 डोजेज ले ली है कोविशील्ड के, तो इज इट ओके? क्योंकि अभी तो इन लोग ने एसओपी कुछ 12 to 16 वीक्स का कर दिया है। आपने कितने वीक के गैप में लिया था? 5 वीक्स के गैप में लिया है, दोनों डोजेज ले लिए। ठीक है डॉक्टर सिन्हा। हाँ, तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि आपने अगर ये ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो लोग ले ही रहे थे 4 से 6 हफ्ते के बाद, बट रिसेंटली जो गाइडलाइन आई हैं कोविशील्ड के बारे में, तो कोविशील्ड वैक्सीन जो रिसेंटली देयर वाज पब्लिकेशन इन लैंसेट एंड देयर वाज स्टडी डन इन यूरोप एंड अदर इन लंदन एंड अदर कंट्रीज, एंड दे हैव फाउंड दैट फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड इज इफेक्टिव फॉर about 10 to 12 weeks, and there are enough antibodies in body after taking first dose of Covishield vaccine. So is based on this evidence, government ने now increase कर दिया है। Now government ने कहा है कि second dose आप 12 से 16 हफ्ते के बाद दे सकते। तो ये based on evidence है, evidence based increase किया गया ड्यूरेशन। और इसमें ये भी देखा गया कि आप सेकंड डोज अगर 12 से 16 हफ्ते पर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर बेटर और एंटीबॉडीज आपके बॉडी में ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। एक सनी शर्मा डॉक्टर सिन्हा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पहला कोविड टीकाकरण के बाद आइसोलेशन करना चाहिए जब तक दूसरा टीका नहीं लगता है? जैसे मैंने बताया कि पहले टीके के बाद ही, कोविशील्ड के पहले टीके के बाद ही 80 to 90% इम्यूनिटी आ जाती है बॉडी में, एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और बेस्ड ऑन दिस इंक्रीज करा गया ड्यूरेशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट a very important thing is everybody have to follow appropriate COVID behavior even after taking Covishield or Covaxin or Sputnik vaccine। आप लेने के बाद 100% सेफ नहीं है। अब जैसे कहा गया है कि कोविशील्ड की एफिकेसी अराउंड 70 to 80% है, कोवैक्सीन की 80% है एंड स्पुतनिक की 90% है अराउंड। तो इसका मतलब यह है कि आप 100% सेफ नहीं है, इसलिए आपको मास्क भी पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको हैंड हाइजीन करनी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि दवाई भी कड़ाई थी। उनका मतलब है कि आप इंजेक्शन वैक्सीन लीजिए बट अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को फॉलो। ठीक है डॉक्टर रवि कीर्ति, कुछ और सवाल हैं, उससे पहले जो हमारा मुख्य विषय है प्रोटोकॉल का उस पर हम बात करते हैं कि अगर कोई शख्स है उसको कोविड की पुष्टि होती है और उसको ज़्यादा सिम्टम ज़्यादा नहीं है और वो घर ही पे रहता है, होम आइसोलेशन पे रहता है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल है? कितने दिन उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए, किस तरह से मेडिकेशन करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? जी, तो अगर तो उसको कोई लक्षण नहीं है, बस आसपास किसी को हुआ इसलिए जांच करवाई और पॉजिटिव आ गया, जिनको एसिम्प्टोमेटिक केसेस हम लोग कहते हैं, तो ऐसे मरीजों को अलग से कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी जो मल्टीविटामिन, विटामिन सी आदि चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की वो ली जा सकती हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। लाभ भी होता है कि नहीं हमें नहीं पता। अपने ऊपर निगरानी रखें। अगर उनको कभी भी लगे कि उनको सांस में कठिनाई हो रही है या कोई और लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, और अगर उनके पास सुविधा है तो अपने ऑक्सीजन की संतृप्तता की जांच करते रहें। अगर इन चीज़ों में कभी भी कहीं भी कोई चिंता का बिंदु दिखता है तो अवश्य ही स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क करें। तो एक हो गया अपने ऊपर निगरानी रखना। और जहाँ तक आइसोलेशन की बात है, अपने को बाकी लोगों से पृथक रखने की बात है, तो आम तौर पर लक्षण आरंभ होने के 10 दिन बाद लोग प्रायः संक्रामक नहीं रह जाते। तो जिसको लक्षण है ही नहीं उसको तो फिर कब से हम उन 10 दिनों की शुरुआत करें? तो उनके लिए हमारे पास एक ही बेंचमार्क है कि जिस दिन उन्होंने जांच करवाई
वहां से हम गिने जी। तो 10 दिन के बाद हम मानते हैं कि वो संक्रामक नहीं रह जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलते हैं, और इसलिए 2 सप्ताह हम कहते हैं कि आप अपने को बाकी लोगों से पृथक करके रखें। ओके, इसके साथ ही कुछ और सवाल भी आ रहे हैं, हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं ऑन फेसबुक। श्यामलाल वर्मा wants to know that his daughter is 11 years old and she has epilepsy, and he's wondering that if and when vaccination starts for children, can she take the vaccine? Dr. Ved Prakash. ये श्यामलाल जी, अभी जो 2 से 18 साल के लिए जो हमारे ट्रायल्स ऑन हुए हैं उसकी परमिशन दी गई है, और अभी ट्रायल्स चल रही हैं इसके, जल्दी ही इसके लिए रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। और जो एपिलेप्सी है इसमें लगता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, लेकिन अभी रिकमेंडेशन आ जाए तो फिर आपको हम लोग और बेहतर बता पाएंगे। आपको कई माध्यमों से इसके लिए पता भी चल जाएगा, लेकिन कोई इस तरह का जो कंट्राइंडिकेशन है उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरोहा से, कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, सवाल पूछिए अपना। कृष्ण कुमार जी, लगता है संपर्क टूट गया है कृष्ण कुमार जी से। डॉक्टर साहब, एक दो सवाल और लेते हैं, और खासकर अगर हम बात करें ये ब्लैक फंगस को लेकर के काफ़ी कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, काफ़ी लोग इससे भी घबराए हुए हैं। तो एक सवाल तो ये है कि ये पूछा गया है कि क्या कोविड होने के कितने दिनों बाद, ठीक होने के कितने दिनों बाद ब्लैक फंगस का खतरा रहता है। और उसी के साथ एक सवाल और है हरिओम सोलंकी का, ये लिखते हैं कि मैं अस्थमा का मरीज हूँ, मेरे इनहेलर जो है वो एरोकोट रोटोकैप है जिसमें एस्टेरॉइड है, क्या ब्लैक फंगस का खतरा बनेगा इससे? क्या ये मेरे लिए क्वेश्चन है? जी आप ही बता जी सर। हाँ, अच्छा, थैंक यू। सो मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये ब्लैक फंगस देखिए आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैंने शुरू में भी बताया था कि जो पेशेंट हैं जिनको कोमॉर्बिड स्टेट है, जैसे डायबिटीज़ है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। दूसरा है जो मरीजों को कोविड के दौरान काफ़ी हाई मात्रा में इरेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड किया गया है, और उनको उसके कारण डायबिटीज हो गई है, और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, आइदर इन OHA और इन इंसुलिन फॉर्म में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। 2 चीजें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कोविड में देखी गई हैं, कि जिन मरीजों को इम्यूनो सप्रेशन है, और भी मरीज जैसे कैंसर है या क्रोनिक इन्फेक्शन है, HIV है, और जिनमें इम्यूनो सप्रेशन ड्रग पर है, तो ये सब एक हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें देखा गया है कि, और क्रोनिक लंग डिजीज है, जैसे आपने बताया, पूछा, एक और मरीज पूछ रहे हैं कि उनको ब्रोंकियल एस्मा है, तो ब्रोंकियल एस्मा हो गया, COPD हो गया, ILD हो गया, इन सब मरीजों में ज्यादा चांसेस होते हैं फंगस, ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस होने के। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि आप देखिए अगर आपको ब्लैक फंगस हो रहा है तो आपकी नाक से सिक्रीशन आ सकता है, येलो या ग्रीन कलर का, और ब्लड भी आ सकता है नाक से। आपके चेहरे पर सूजन आ सकती है क्योंकि साइनस में अगर ये फंगस ग्रो करता है, और रेड कलर या ब्लैक कलर की स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, और फिर आंखों में सूजन हो सकती है, और काफी जो है आंखें फूल जाती हैं जिसमें इन्फेक्शन के कारण, म्यूकोरमाइकोसिस के कारण, और ये ब्रेन में भी जा सकता है, और ये जो है ब्रेन में जाकर आपको इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के कारण आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, या अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, और साथ में लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम फंगल निमोनिया कहते हैं। तो ये आपको फंगल निमोनिया भी कर सकता है, जिसके कारण आपको खांसी, बलगम, बुखार, और खांसी में ब्लड भी आ सकता है। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है, ये सॉइल में, एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है, और अगर आप इसके स्पोर को इनहेल कर लेते हैं और इम्यूनो सप्रेशन है आपको, तो ये एज ए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह बिहेव करता है, और आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इस इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं।
तो एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम कंफर्म करने के लिए वो जो फ्लूइड आता है नाक से या आइज में या साइनस के थ्रू या थ्रू बलगम जो आता है आपके लंग से, उसका एक टेस्ट करते हैं, फंगस देखते हैं उसमें है कि नहीं। और दूसरा हम लोग ये भी, अगर स्वेलिंग है, म्यूकरमाइकोसिस के कारण स्वेलिंग हो गई है, तो वहाँ से हम एफएनसी या बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं, तो नेजल पैसेज कंफर्म करते हैं इसको। और फिर एक बार कंफर्म हो जाता है तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट है लिपोसोमल एम्फोटेरेशन बी, और ये ट्रीटमेंट अगर समय पर शुरू करा जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं ठीक से और टाइम पे करा जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं और कई बार मोर्टेलिटी भी हो सकती है। ओके, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वी हैव दूसरा क्वेश्चन मैं जो ब्रीफली आंसर करना चाहूंगा कि एक आपके व्यूअर ने पूछा था कि वो इनहेल्ड बुल्सोनाइड ले रहे हैं, तो ये बहुत ही कम मात्रा में इसमें स्टेरॉइड होता है। अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, एक्यूट फेज में ले सकते हैं आप। जनरली ज़्यादा प्रोलॉन्ग समय के लिए और दवाएं हैं जो दी जाती हैं, ब्रोंकोडायलेटर, नेल ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, वो दिए जाते हैं जिन्हें हम सावा या लावा कहते हैं। और स्टेरॉइड अगर जरूरत नहीं है, एक्यूट फेज में हम लोग देते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेते। जी जी, ठीक है, थैंक यू। वी हैव अनदर कॉलर, अजय कुमार, जॉइनिंग अस फ्रॉम बोकारो इन झारखंड। गो अहेड अजय, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार सर, मेरे दो क्वेश्चन है सर। पहला सवाल ये है कि बहुत सारे केसेस यहाँ पे देखने को मिले जहाँ पे कि पेशेंट असिम्प्टोमेटिक थे और उन्होंने वैक्सीनेशन लिया, उसके बाद उनके कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़े, कुछ लोग काफी सीरियस हो। तो सर क्या ये जरूरी है कि वैक्सीनेशन के पहले हम आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं? और सर दूसरा सवाल ये है कि जब हम आइसोलेशन में होते हैं तो कई मजबूरियों के वजह से हमें खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या क्या सावधानियां बरतें? अगर बाहर से खाना मंगवा के खाना पड़ रहा है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ठीक है, डॉक्टर रवि कीर्ति जी। जो पहला प्रश्न है इनका कि कई बार ऐसा देखा गया कि किसी ने पहले खुराक टीके की ली और उसके बाद उनको लक्षण आए और फिर पाया गया कि उनको कोविड है। तो ये तो ज़्यादातर ये संयोग की बात है कि वो पहले से संक्रमित हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने टीका लिया और उसके बाद उनके लक्षण प्रकट हो गए। तो इसको टीका से जोड़कर देखना उचित नहीं है। ये बस संयोग की बात है कि चूंकि अभी संक्रमण इतना फैला हुआ है, लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हैं, तो उनमें से कुछ लोग टीका लेने पहुंच जाएं चूंकि उनको लक्षण नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और फिर बाद में उनके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ना नहीं है। हाँ, साथ में मैं एक सावधानी अवश्य कहूँगा, खास करके अभी जब संक्रमण इस दूसरे लहर में बहुत ज़्यादा इसका प्रसार हो रहा है, कि ये ध्यान रखें कि टीका लेने के क्रम में लोग बहुत भीड़ भाड़ में न जाएं, अपने को बचा कर रखें, वहाँ भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। जो दूसरा प्रश्न था कि बाहर से अगर भोजन मंगवा रहे हैं, तो अगर आप संक्रमित हैं और स्वयं को आपने पृथक किया हुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति आपको भोजन देने आ रहा है, तो खतरा उस व्यक्ति को आपसे है, न कि बाहर वाले से आपको। तो ऐसे में बेहतर है कि आपका उस व्यक्ति से आमना सामना न हो, वह व्यक्ति मास्क पहनकर आए और आपके दरवाजे के बाहर भोजन रखकर चला जाए। अगर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन, आप स्वस्थ हैं, आप संक्रमित नहीं हैं, लेकिन लॉकडाउन आदि की वजह से आप बाहर जाने में असमर्थ हैं और बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, यानी कि आप संक्रमित नहीं हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो आम सावधानियां हम लोगों ने सबके लिए बता रखी हैं, उन्हीं का पालन करना है। मुख्य रूप से जब आप सामने वाले व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, वह आपके सामने खड़ा है, उसी समय संभावना है इस बात की कि संक्रमण का आदान प्रदान दोनों दिशा में हो सकता है। तो उस समय आप स्वयं मास्क पहने, प्रभावी रूप से पहने, आपकी नाक और आपका मुंह ढका हुआ हो, और
पहले ही जब आप भोजन मंगवा रहे हैं तो फ़ोन पर उस व्यक्ति को कह दें कि वह भी मास्क पहन कर ही आए, और जब आप या तो वो बाहर रख के चला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उससे लेना पड़ता है या आपको उसको उसी समय पैसे देने हैं तो ऐसी स्थिति में दूरी बनाकर रखें। जो 2 मीटर की दूरी बनाने की बात कही गई है, हमेशा उसका पालन करें। इसके अलावे मैं समझता हूँ विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मास्क और दूरी बनाकर। ठीक है डॉक्टर वैद, एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए है। अभिनव किशोर हैं, ये 3-4 बार सवाल पूछ चुके हैं। इनका कहना है कि माई आंट हैड टेकन द फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन ऑन 12th April इन पटना. She is scheduled to undergo gallstone surgery on 3rd June. When she should take the second dose of Covaxin, उस बारे में पूछ रहे हैं, और क्या उनको अपनी सर्जरी पोस्टपोन कर देनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये जब भी हम लोग कोई सीरियस इलनेस की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, आईसीयू में ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन या तो उसको डेफर करें। अब चूंकि कोवैक्सीन का जो टाइमिंग है वो फिक्स है और जो गैप है वो 4 सप्ताह का है पहली डोज में और दूसरी डोज में, तो 4 से 6 सप्ताह का डॉक्टर साहब वो रेशिड्यूल अगर कर सकें अपनी सर्जरी को तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज अपने डॉक्टर से एक बार वहाँ पे सलाह ले लें, उससे बात कर सकते हैं, और सेंटर पे जहाँ पे नज़दीकी सेंटर पे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से, बशीर खान। बशीर, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा ब्रेन ट्यूमर है। कौन सा तो ट्यूमर? मैं कोविड का इंजेक्शन ले सकता हूँ? मेरा ट्रीटमेंट चालू है। आपको ब्रेन ट्यूमर है, आप वैक्सीन लेना चाहते हैं और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ब्रेन ट्यूमर का, यही ना? हाँ सर। जी हाँ। ठीक है डॉक्टर सिन्हा। हाँ, तो एज पर गाइडलाइन तो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, जो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट अपने डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि क्या दवाएं ले रहे हैं ये देखना पड़ेगा उसमें। मेरे को डिटेल्स पता नहीं है आप क्या दवाएं ले रहे हैं, बट एज सच देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन। और जैसे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको एपिलेप्सी है या दौरे पड़ रहे हैं तो एडल्ट में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं, एडल्ट पेशेंट में आप वैक्सीन ले सकते हैं। इसी तरह अगर ट्यूमर है और भी बॉडी में कोई ट्यूमर है तो उसका कंट्राइंडिकेशन नहीं है, बट टाइमिंग देखना पड़ेगा कि क्या दवाएं ले रहे हैं और क्या बेस्ट टाइमिंग है आपको वैक्सीन देने की, उसके बारे में आप डॉक्टर से सलाह। Okay, we're also getting some more Facebook queries. Monu Chaprana has an intriguing question saying that he's 20 years old and he was COVID positive a month back. He was detected COVID positive, and but even now he gets low grade fever, about 99 degrees का इनको बुखार आता है अभी भी, and still feels that he has some pain in the body, and the sense of smell has also not completely come back. He says थोड़ा बहुत तो स्मेल का सेंस आ रहा है, लेकिन कोई भी खाना चीज़ जो भी अच्छी भी लगती है वो भी खाता हूँ तो वो बेस्वाद सा लगता है। सो व्हाट शुड ही बी डूइंग? डॉक्टर वेद प्रकाश, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। It was this patient, he still has low grade fever even a month after being detected COVID positive, and has some other associated body ache and sense of smell issues as well. So what should this person do? Yes, Gautam, he having the lack of smell and taste, and I think he's amid the COVID disease, so he has to take all the precautions and all the treatment prescribed by the doctors for him. And if the symptoms are going beyond, then he should also check about the respiratory issues, about the any evidence of COVID pneumonia also, because if he is having the fever and still persisting for many days, then he should go to the he should consult online to the doctors for the further investigations. He may require scanning also, he may require the other tests also, and a change in the treatment protocols.
ठीक है डॉक्टर संजीव सिन्हा, हम बिल्कुल कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में हैं और जिस तरह के हालात हैं उसमें हर रोज़ नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं, यानी कि ठीक होने वालों की अगर हम संख्या देखें तो वो जो नए मरीज़ आ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा हैं और मौत भी हो रही हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। और इस सब के बीच जितने भी लोग हैं उनका भरोसा कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा। पहले तो मैं एक पॉजिटिव आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाहूंगा कि देखिए अभी नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, मैं बहुत ही ब्रीफली बताना चाहूंगा, और नंबर ऑफ डेथ तो सिमिलर ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट नंबर ऑफ केसेस 2,59,551 ये है टुडे, लास्ट 24 आवर का डेटा है। और दिल्ली में देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है, दिल्ली में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। करीब 15 दिन पहले 18,000 पर डे थे और आज आप देखेंगे तो दिल्ली में करीब 3,200 केसेस हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अपने दर्शकों को कि जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग, सो प्लीज इन्वॉल्व इन दैट एंड डू testing if you have any doubt of COVID infection. And then very important message for all the audience कि वैक्सीन जरूर लें, वैक्सीन लें और अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को फॉलो करें। वैक्सीन हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन देखिए इस बार सेकंड वेव में जिन लोगों ने पहले से वैक्सीन ले रखा है उनको या तो डिजीज नहीं हुई है या उनको बहुत ही लेस सिम्टम्स आए हैं, माइल्ड डिजीज हुई है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ा है और आईसीयू में नहीं जाना। Right. तो मेरा मैसेज है वैक्सीन लें, appropriate COVID behavior को follow करें। All right. Without we completely out of time, thank you so much for joining us, Dr. Sanjeev Sinha, Dr. Ravi Kirti, Thanks, and sir. Dr. Ved Namaskar. Prakash as well. And for all those whose queries are still with us on Facebook, I would ask you to well join us again the same time tomorrow or later in the day as well. 7 to 8 p.m. is again when two of our colleagues will be there on Dr. Speak to take up your queries along with other set of experts as well. So do join then if you can. तब तक के लिए नमस्कार।